हे प्रभु, मुझेपरी गोटे विशुद्ध निर्मल स्फटिक हो जाए, जहाँ तुमर दिव्य रश्मि को अस्पष्ट नक अतिरंजित किंबा विरूप नक ता मध्य प्रवेश करने को हम। परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आमे आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ चलतु आम नीरव ध्यान करवा प्रभु माँ को मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 136। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम वेस्ट बेंगल कोलकाता जगतीपुटारू आम बद्री भाई को अनुरोध करुचु। बद्री भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव प्रभु माँ को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस। माँ श्री अरविंद सावित्री बुक 2 Canto 4 The Kingdoms of Little Life, page number 136. An unhappy face of falsity made true, a contradiction of our divine birth, indifferent to beauty and to light. Paradising she flaunted her animal disgrace, unhelped by camouflage, brutal and bare. An authentic image recognized and signed of her outcast force exiled from heaven and hope, fallen, glorying in the vileness of her state, the grovel of a strength once half divine, the graceless squalor of her beast desires, the staring visage of her ignorance, the naked body of her poverty. Her first she crawled out from her cabin of mud, where she had lain incontinent, rigid, mute. Its narrowness and torpor held her still, a darkness clung to her uneffaced by light. There neared no touch, redeeming from above, the upward look was aligned to her sight, forgotten the fearless godhead of her work, renounced was the glory and felicity, the adventure in the dangerous fields of time, hardly she availed, wallowing to bear and live. A wide unquiet mist of seeking space, a rayless region swallowed in vague swaths that seemed unnamed, unbodied, and unhoused, a swaddled, visionless and formless mind asks for a body to translate its soul. Its prayer denied, it fumbled after thought, as yet not power to think, hardly to live, it opened into a wearied and pygmy world where this unhappy magic had its source. On dim confines where life and matter meet, he wandered among things half seen, half guessed, pursued by ungrasped beginnings and lost ends. Their life was born but died before it could live. There was no solid ground, no constant drift, only some flame of mindless will had power. Himself was dim to himself, half felt, obscure, as if in a struggle of the void to be. In strange domains where all was living sense, what mastering thought was not, nor cause nor rule, only a crude child heart cried for toys of bliss. Man flickered, a disordered infant glow, and random shapeless energies drove towards form and took each wish fire of a guiding. आमे एत बेला जाए मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु माँ को ध्यान करुले। वर्तमान समय होइछि कार्यक्रम को आहुरी भक्तिमय परिवेश रे सृष्टि करदेवा आमे रसुलगढ़ भुवनेश्वर आम रेणुअपा को अनुरोध करुचु। रेणुअपा आपण प्रभु माँ पदार बिंदरे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करंतु। रेणुअपा मातु
ନିର୍ଝର ମା ମା ତୁ କରୁଣାର ଚିରନ୍ତନୀ ନିର୍ଝର ମା ତୁ ଆଶିଷର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାର ମା ତୁ ଆଶିଷର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାର ମା ତୁ କରୁଣାର ଚିରନ୍ତନୀ ନିର୍ଝର ମା ମା ତୁ କରୁଣାର ଚିରନ୍ତନୀ ନିର୍ଝର ପାଖେ ପାଖେ ଅଛୁ ସଦା ଛାଇଟିଏ ହୋଇ ଚଳାଇ ନେଉଛୁ ପଥ ହାତ ଧରି ତୁହି ପାଖେ ପାଖେ ଅଛୁ ସଦା ଛାଇଟିଏ ହୋଇ ଚଳାଇ ନେଉଛୁ ପଥ ହାତ ଧରି ତୁହି ଅବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ ମୁଁ ତୋହର ମା ତୁ କରୁଣାର ଚିରନ୍ତନୀ ନିର୍ଝର ମା ମା ତୁ କରୁଣାର ଚିରନ୍ତନୀ ନିର୍ଝର ବାଧେ ନାହିଁ କଣ୍ଟା ଛଟା ବୈଶାଖୀ ଖରା ତୋ ପଣ ତ ଛାଇ ଅଛି ଏ ଜୀବନ ସାରା ବାଧେ ନାହିଁ କଣ୍ଟା ଛଟା ବୈଶାଖୀ ଖରା ତୋ ପଣ ତ ଛାଇ ଅଛି ଏ ଜୀବନ ସାରା ଏ ଜୀବନ ମରୁରେ ତୁ ପ୍ରେମ ପାରାବାର ମା ତୁ କରୁଣାର ଚିରନ୍ତନୀ ନିର୍ଝର ମା ମା ତୁ କରୁଣାର ଚିରନ୍ତନୀ ନିର୍ଝର ମା ତୁ ଆଶିଷର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାର ମା ତୁ ଆଶିଷର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାର ମା ତୁ କରୁଣାର ଚିରନ୍ତନୀ ନିର୍ଝର ମା ମା ତୁ କରୁଣାର ଚିରନ୍ତନୀ ନିର୍ଝର ହେ ମା ହେ ମା ହେ ମା ହେ ମା ହେ ମା ହେ ମା ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଆପଣ ବନ୍ଦନାର ଗାଇକି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦନା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ସବୁତକ ବନ୍ଦନା ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ନିବେଦିତ ହୋଇ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଆପଣ ଏଇଭଳି ସବୁବେଳେ
वंदना प्रभु माँ को चरण कमल रखु था एवं आम समस्त को प्रभु माँ को चरण कमल उन्मिलित कर रखि था। धन्यवाद अपा, धन्यवाद। वर्तमान समय होती कार्यक्रम आम गोटे आलोच्य विषय रखीचे। आज गोटे टॉपिक रही आलोचित आलोचना होगा अच्छी प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, चेतनार विशुद्धीकरण। आज प्रसंग रही प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतनार विशुद्धीकरण, जहाँकि आलोचना करने आम भाई को अनुरोध करुचु। भाई होचंदी विश्वजीत भाई, गोपीनाथपुर कटक। गोपीनाथपुर कटक आम विश्वजीत भाई को अनुरोध करुचु, भाई आलोचना जारी रखंतु। तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्यनधीपयेत्। दिव्यजननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद एठारे ऑनलाइन पाठचक्र उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई और भौणी माने समस्तଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା दिव्यता को मोर प्रणाम। आज जो आलोचनार विषय वस्तुटी अच्छी ता होची प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अर्थात चेतनार विशुद्धीकरण। श्री अरविंद जोगरे आम अनुप्रवेश करुचे सेतेबेले जो शब्दटी सहित आम अनेक बार भेटू ता होची चेतना। आउ गतकाली एप्रिल 24 दर्शन दिवस कार्ड रे जो शब्दटी अधिक परिमाण रे व्यवहृत होइतिला सेटा होची चेतना, चेतनार परिवर्तन। तेणु ताकू ही आधार करी आज आमर विषय वस्तु चेतनार विशुद्धीकरण। विषय भितर को प्रवेश करिया पूर्व गोटे गल्पर सहित आरंभ करुची। 3 जन युवक थांती, से माने योजना करले नई सेपारी गोटे जंगल रे बनभोजी करियाको। तांकर योजना थिला जे से संध्या समय ही बनभोजी करिवे। तेणु अपराह्न रे से माने बाहरले। अपराह्न रे जते नई पार करिवे गोटे नौका देकी जीवाक पड़िबो। तेणु नाउरिया को अनुरोध करले हमक नै सेपारे छाड़ी दे, किंतु फेरिया को राती ही जीवो। नाउरिया कहिला मोर तो संध्या सुधा काम सरी जाए, तो गोटे काम करिवे आपण जदी नौका बाहिकी पुणी फेरी पारिवे राति को ताहले मोर किसी आपत्ति नहीं। मु नौकाटी से कूल बांधे जीवी, पहरिकी फेरी आसबि। आपण माने आपण निजे निजे नौका बाहिकी आर पारि पुणी आसबे। तेणु एमाने शर्त राजी हेले। नाउरिया नहीं आर पारे छाड़देला। से माने तांकर संध्या समय रे भोजी कले, तापरे खाई पिउ राति ही गला। आजिकल भोजी तो आम जानिथिबा युवक माने मद्यपान न कले भोजी हुए नहीं। तेणु से माने ढेर मद पी देले, पीकी आसी डंगार आसी बसिले। तापरे जो लोकटी तांको भितर जो युवकटी से जानिथिला केमिति डंगा बाहिबा को हुए, तो सी कात मारला, आहुला मारला, किंतु डंगा घुंचिया को नहीं। तो समस्त प्रयास कले, चेष्टा कले, कात मारले, डंगा आहुला मारले, किंतु डंगा घुंचिया को नहीं। आश्चर्य कौन होउजी, डंगा जाऊनी कौन पे आगु को। माताल थांती तो किसी बुझा पड़ न थाए, पहले आउ अवस्था नहीं, आम आर को जाई परिबुनी। आज रात्रिटा एठी आम डंगार विश्राम नवा। एया कहि से सोई पड़ले। सकाळ हेलारु नाउरिया देखुची आर कूले डंगा तार नहीं। तो से पहर के आसी एपारी को देखिया को कौन हेजी, से माने कौन पे डंगा नेकी जाई नांती। तो आसी पहर के पहुंची देखिला बेलू ए 3 जन युवक डंगा ऊपर शोइचंदी। डाकी उठेला, हे बाबू उठ, कौन पे तुम काली रात डंगा नहीं जाइन, ये कौन समय शोच। से 3 जन युवक कहते जे कि डंगा हो तुमर, आम एते मारलु, कात मारिलु, एते आहुला मारलु, कहीं से डंगा घुंचिया को जीव। सेठू नाउरियाटी कहूची तुम मैंने सतरे पागल। अरे डंगार दौड़ी परा बंधा ही कूल रे, दौड़ी फिटेले सिना डंगा आगु जीव। गपटी ये सरी। से युवक माने दौड़ी फिटे नथिले, कात मारी चलते, आहुला मारी चलते, डंगा कूड़े आगु जीव।
एई कथाटिकु एई दृष्टान्तटिकु आम जीवन सहित संपर्कित कले आम देखिबा आम जीवन एहाटु अधिक भिन्न नुहे। आम समस्ते अग्रगति करिया इच्छा करछे, आगु जीवाकु चाहुछे, किंतु आमे कोनसा कोनसे बंधन रे पड़िचे, बांधी हेगी रहिचे। आम प्रकृति निम्नतर चेतना रे बांधी हेगी रहिचे। तेणु आमे जिते अग्रगति करिया आकांक्षा थिले कोन हबो, हम बेसी आगु जाई परनु। हम सेमती हमर निम्नतर स्तर मानक भितरे बांधी हेगी रहिचु। गोटे गुंफाटी तयारी करी सामुका जेंति तार जो सेल टी तयारी करी ता भितरे सी आबद्ध होइकी रही थाए, सेई सेल भितरे सी खुशी थाए। सेमती आमे मध्ये हमर सेई सेल भितरे सेई बंदी गृह भितरे खुशी अछि। आ जेतेबेले खुशी हे हम त स्वीकार कर नैचु, तनो आगु केमते बढ़ी परिबो। हमकु सेई निम्नतर चेतना सहित जो आमे बंधा पड़िचे सेई बंधन टी काटिया पड़िबो। तो एठी हम आरंभ करिया विषयटी प्रति जे एई जिंसटर आवश्यकता कोन पडुची। हमें देखिबा जे विवर्तन धारा रे जे प्रथमे जड़ आसिला, तापर जड़ भितरे जीवन प्रवेश हला, प्राणर संचार हला, तापर से प्राण भितरे मन आसी उद्भव हला और सेठु मनुष्य जन्म हला। देखिया वर्तमान विवर्तन धारा रे पृथ्वी रे सबुठु शीर्ष रे उच्चतम शिखर रे की अछि, से होछि मनुष्य। ता मध्य देई मन बा मानसिक चेतना तार उच्चतम संभाव्य परिस्थिति रे बा स्थिति रे आसी से पहुंची गलानी। ता मन जेति परिमाण विकसित होबा कथा से धारा से विकसित हो गलानी। किंतु आमे जे देखिबा मनुष्य एपर्यंत संपूर्ण गोटे मानसिक सत्ता से हे कि नहीं। कौन सी अच्छी सी गोटे जेमती मन थिबा गोटे पशु रे परिणत होइक अछि। कारण ता आधार रे मन तार प्रभु एपर्यंत हे कि नहीं। तेणु ता भितरे एबे किए प्रभु हेक अछि ना, ता प्रभु हेक अछि तार पशु प्रकृति, ता पाशविक प्रकृति, ता प्राण सत्ताटी जे कि ताको शासित करूची और तार सब किछि मानसिक इंस्ट्रूमेंट गुड़िक, मानसिक जंत्र गुड़िक से ही हैंडल करूची, तार नियम धारा से पकेक रखिछि। सेइथि पई आमे जेमिति से प्राण पाखरे गोटे दास होइक रहिचे। तेणु मन जेते उत्कृष्टता लाभ करथिले मध्य, मन जेते विकसित हेइथिले मध्य मनुष्य गोटे भयंकर जंतु होइक रहिछि। कारण ता भितर थिया प्राण ताकू गोटे ध्वंसा भूमि कर नैछि। तेणु देखिबा जे मनुष्य जेमती गोटे प्रकृतिर गोटे एक्सपेरिमेंट, प्रकृतिर गोटे परीक्षा, जहा भितर दे प्रकृति परीक्षा निरीक्षा करि चलछि। श्रीमा और श्री अरविंद एइथि पई ए पृथ्वी पृष्ठ को आस्तिले मनुष्य को तार वर्तमान रो स्थिति रु आउ गोटे उच्चतर आउ गोटे महत्तर स्थिति को उत्तीर्ण करिवे। तेणु से एक नुआ प्रकार चेतना को ए पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण करि आनले। सेई नुआ चेतना, सेई नूतन चेतना एठी कार्य करूची। से नूतन चेतना कार्य करिया फल रे को प्रकार स्थिति एठी सृष्टि होची ना, जो सबु साहित्य निम्नतर कथा गुड़िक को सी ता भीतर घांटी देकी ताको जागृत करोची। अर्थात से जागृत हेले ही से माने ध्वंस पाइबे। से माने सोईकी रहिथिले, जाबुड़ी की सब रहिथिले अंधारुआ कोण मानकरे, जेते माने जागृत हे उठुचंती। एबे देखा जाउची जे समग्र विश्व जेंति गोटे भयावह परिस्थिति दे गति करूची। आ से नूतन चेतनार कार्यधारार पथरे जहा भी किछि आसी छिड़ा होची, सब किछि ध्वंस पाउची। एमिति कि देखिया गले अनेक नैतिक नियम जहा सब से आध्यात्मिकतार पथर विरोधी, से सब किछि ध्वंस पाई जाउची। कारण नुआ किछि प्रतिष्ठा हो गले पुराना गुडी भांगी जाय पड़े। तो जहा किछि प्रतिष्ठित हेछि ए पर्यंत सब किछि एंति धूलिसात हे जाउची, भुसुड़ी पडुची। हा एई सुजोगर फायदा उठेई एहर ही सुजोग नै मिथ्याचार आहुरी जागृत हे जाइछि, दुर्नीति धीरे धीरे बढ़ी चलछि। सब किछि जेमति समाज को खाई खाई चलचंती। तो एई परिस्थिति रे मां कहउचंती जे दिव्य जननी और परम प्रभु एई उद्देश्य रे आस्थिले और सी ए नूतन चेतना को आनी कार्य करी चलचंती। नूतन चेतना जो कार्य करूची
सी पृथ्वी को एई स्थिति निश्चिंत उत्तीर्ण कराई नेब। आमे तांकरी कोଳରେ ଯାଇକି आश्रय नहीं परिबा तो सब किसी समाधान हो जिवो। तबे प्रश्न उठुची, तबे आमे एक परिस्थिति रे अलसुआ भली बसी रहिबा ना आउ किसी गोटे उच्चतर पदक्षेप नबा। ସେଇଠି माँ कहउचंती जो माने भी किछि गोटे महत्तर पई अभिप्सा करूचंती से माने एई जो आंदोलन से माने सेते सहायता देई परिबे। किंतु आमे निजो पचारिबा जे प्रकृति रे आमे से आध्यात्मिक चेतना चाहू कि, प्रकृति रे आमे सेई स्थिति को उत्तीर्ण होको चाहू कि, जदि आमे अनुमति न दउ तबे आमे निश्चिंत समय सहित बही जिबा, समय सहित आमे भी ध्वंस पाई जिबा। आउ गोटे महत्तर शक्ति से ए जन्म रे हो पछे आउ गोटे जन्म रे हो पछे हमकु से बाध्य करिवो से नूतन चेता को ग्रहण करिया। कारण समय सहित जो माने परिवर्तन पई स्वीकृति देई नाहंती से माने ध्वंस पाई जायछंती। उदाहरण स्वरूप देखा डायनासोर जे कि पृथ्वी रो परिवर्तित परिस्थिति सहित से जे खाप खुआली से चली पारला नहीं, से ध्वंस पाई गेला। तने जो मनुष्य माने स्वीकृति देबे नहीं से माने ध्वंस पाई जिवे। ए जन्म न हो पछे आरो जन्म ता पर जन्म तांको से कार्यटी करिया पड़िबो। किंतु यथार्थ जो माने से आध्यात्मिक चेतनाटी चाहंती ताहले तां कोन करिया पड़िबो, तांको पई एटा गोटे साधना, एटा गोटे सचेतन प्रस्तुति। ताहले हम कोन करिया पड़िबो, आमे देखिबा आमे चेतनार जो धारा, चेतनार जो सीढ़ी तार आमे गोटे निम्नतर पर्याय रे ही अच्छे। आमे अधिक बेसी अधिक ऊर्ध्व को उठी पारि नाही, अनेक निम्नतर प्रकृति में आमे बुड़ी रहिछे। तो माँ कहउचंती हमकु सेठारु ही आरंभ करिया पड़िबो, सेई जड़ चेतनारु ही कार्यटी आरंभ करिया पड़िबो। तो सेई सिंचरो से कहउचंती जे ए जो आरंभरु पूरा पूरी निम्नतर पर्यायरु आरंभ करिया को राजयोग रे सेई जिंस उल्लेखित अछि जे हमकु पूरा आरंभ करिया पड़ो शरीर ठारु। ए शरीर को ट्रेन करिया पड़िबो, ताकू प्रशिक्षित करिया पड़िबो, ता भितरे संशोधन आनिया पड़िबो, आ ताकू नुआ गोटे रूप दवा पड़िबो। एटा शरीर चेतना कथा गला। आ हमर नैतिक धारा रे राजयोग रे कहै जायछि जे का सहित युद्ध कर नहीं, काहाकू खराब शब्द उच्चारण कर नहीं, चोरी कर नहीं, मिछ को नहीं। एटा गोटे आध्यात्मिक श्रृंखला जहा कि प्रारंभिक पर्याय रे हमकू अग्रगति रे सहायक हो। निजे प्रति ए मुहूर्त कठोर होगा पड़िबो। एटा ही आरंभ मूलरू आरंभ करियार गोटे पर्याय। तो एठु ही आरंभ हबो जे गोटे मात्र उपाय हमकु सही चेतना को उत्तीर्ण हबार, सेटा होची द वर्क ऑफ प्यूरिफिकेशन, विशुद्धिकरणर कार्य। ए विशुद्धिकरण पर हम कोन करिबा, हम शरीर मन प्राण को हम सफा करिबा। कहते क्लींजिंग द बॉडी माइंड एंड वाइटल। वास्तव में देखिया गले यदि आमे से आध्यात्मिक जीवन बंचिया को चाहू ताहले हमकु चित्त शुद्धि करिया को पड़िबो, अर्थात हम चेतनार विशुद्धिकरण करिया को पड़िबो। तो माँ कहउचंती जे समय से उच्चतम पर्याय को उठिया को चाह, तुम चेतनार रूपांतर चाह, ताहले हमकु एक कठोर तपस्या करिया को पड़िबो। ताहले ए तपस्यार कार्यटी कोन, जो गोटी मात्र कार्य सेटा होची आत्म विशुद्धिकरण बा सेल्फ प्यूरिफिकेशन। ए सेल्फ प्यूरिफिकेशन पड़े कौन हबो, हम देखिबा गोटे भगवान से असीम चेतना सी एठी अनेक ससीम सत्ता भितर दे निजको प्रकाशित करिसेंती। और सेई जेतेबेले से प्रकाशित हेले तांकर से आनंदमय चेतना को एठारे अवतरण करिया को प्रयास करथिले। किंतु जेतेबेले से आनंदमय चेतना एठी अवतरण कला, ता अज्ञानता जेतु अज्ञानता भितर से आरोहण कला, सब किछि बदली गला। जेमती आनंद निरानंद रे परिणत हो गला, चेतना अचेतन रे परिणत हो गला, जीवन मृत्यु रे परिणत हो गला। तो ता फल रे ए अज्ञानता भितर दे सब सौंदर्य विकृति रे परिणत हो गला। शक्ति ता स्वरूप हरै बसिला, प्रेम ता स्वरूप हरै बसिला। तो माँ कहउचंती जो सत्य चेतना एठारे प्रतिष्ठित हबाकू जाउची तार मुख्यतः चारिटी विभाग अछि, चारिटी एस्पेक्ट अछि।
गोटे होची लव जोटा होची क्वालिटी ऑफ द साइकिक नॉलेज ज्ञान जोटा कि मन भीतर देकी अभिव्यक्त हबो पावर शक्ति जोटा कि प्राण भीतर दे अभिव्यक्त हबो आ गोटे होची ब्यूटी सौंदर्य जोटा शरीर भीतर दे अभिव्यक्त हबो जेते बेले सेही दिव्य प्रेम से दिव्य ज्ञान से दिव्य शक्ति से दिव्य सौंदर्य हमर चेतना मन प्राण और शरीर दे प्रकाशित हेबे ता अर्थ हम कहिबा जे एई सब सत्ता गुडी को परिशुद्ध हे गलेनी तेणु बहुत गुरुत्वपूर्ण एई पर्याय रे जे हमकु से जंत्र गुडी को देखिया को पड़िबो से जंत्र गुडी को पर्यवेक्षण करिया को पड़िबो जहा भीतर देई से चेतनाटी अभिव्यक्त हबो हम देखिबा चिन्हिबा से सत्ता गुडी को जे हमर मानसिक सत्ता से कोन करे हम भितरे अनेक चिंता भावना कल्पना ए सब सृष्टि करे हम भितर थिबा इमोशनल बीइंग से कोन करे से करे अनेक अनुभव गुडी को सृष्टि करे हम थिबा वाइटल बीइंग से कार्य करिया को शक्ति दे आउ हम शारीरिक सत्ता दैट एक्ट्स यथार्थ रे जे कार्य करे और जे कार्य भीतर दे से सौंदर्यटा को फुटाए तले कोन पाई आमे ए इंस्ट्रूमेंट गुडी को ता पूर्णांग रूप देबा आवश्यक चेतना कोन सेमति कार्य कर परियोनी से तो महत्तर चेतना से एक नूतन चेतना से तो सर्वशक्तिमय सब किछि कर परियो तले आमे इंस्ट्रूमेंट गुडी को परफेक्ट करिया कोन पई आवश्यक देखिए से चेतना प्रकाशित हवा से गोटे आधार खोजे गोटे उदाहरण नबा गोटे महान संगीतज्ञ अछंती ग्रेट म्यूजिशियन तांकु आमे गोटे भंगा पियानो देले जोथरे अनेक गुडे नोट्स मिसिंग अछि भांगी जाइछि जेते महान संगीतज्ञ होथो पछके से गोटे भंगा पियानो देकी से संगीत सृष्टि करि परिबे कि स्वर सृष्टि करि परिबे कि किंतु समान समय रे हमें से महान संगीतज्ञ को गोटे सुंदर पियानोटी देलु जहा कि पूरा वेल ट्यून्ड हो जहा भीतर गोटे सुंदर किछि रूप बाहरी पारे सुंदर ताल बाहरी पारे सुंदर स्वर बाहरी पारे ता भीतर से संभावनाटी अछि हेतेबे से महान संगीतज्ञ जनक से किते चमत्कार ता मध्य दे सृजि न पारिबे किते चमत्कार स्वर सृष्टि न कर पारिबे मतलब से चेतना गोटे आधार खोजे हमको से आधार टी तैयार करिया पड़िबो सेटा हेई पारे हम तपस्या बल रे आउ किछि परिमाण रे अनेक परिमाण ता निर्भर करे दिव्य कृपा ऊपर कारण दिव्य कृपा केवल हमरी अभिप्सा हमरी व्यक्तिगत प्रयास हम संकल्प को आधार करे ही कार्य करे तो हमको सेई प्रकार जंत्र टी गढिबा को उत्तम जंत्र टी गढिबा को हम प्रयास करिया पड़िबो तापर कोन हम गढिबा गोटे ब्यूटीफुल वेल बिल्ट बॉडी गोटे अत्यंत सौंदर्यपूर्ण सुगठित शरीर वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड से सुसमंजस सुगठित मन जहाँ भीतर दे से चेतनाटी प्रकाशित हबो देखिबा जेतेबे से उच्चतर सत्यटी एथर अभिव्यक्त होगा चाहूची हम मन को सेतिकी नमनीय होगा पड़िबो सेतिकी उत्कृष्ट होगा पड़िबो जहाँ फल रे ता भितरे से जो शक्तिटा को अभिव्यक्त करिया को यथार्थ क्षेत्रटी से प्रस्तुत करि परियो हमकु से चेतनाटी को से शक्तिटी को हम अनुभव भीतर देई हम कार्य भीतर देई हम सब किछि क्रियाधारा भीतर देई हमर गतिविधि भीतर देई की प्रकाशित करियार अछि तेबे जाई ता यथार्थ मूल्य रहइबो हम देखिबा चेतनाटी ता मूल स्वरूप व्यापक किंतु आम भितरे गोटे अहंकार आसीची जोटा कि भगवान निजक सेपरेट कर नहीं विच्छिन्न कर तारी से अहंकार प्रवेश जोगु आम चेतना संकुचित हो जाइए और आम आधार प्रस्तुत न होइछि हम से चेतना को प्रकाशित कर परिबा नाही तेणु आप प्रारंभिक पर्यायर हमको प्रथमे आम निज विषय सचेतन होगा पड़ो आमर विभिन्न सत्ता गुड़िक विषय सजग होगा पड़ो ता भीतर चलती अनेक गतिवृत्ति अनेक आवेग प्रवेग ए संबंध में स्पष्ट भाव सजग होगा पड़ो तार पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड ताको हमको देखिया पड़ो ता भीतर को आवेग गुड़ आसुची को प्रतिक्रिया गुड़िक आसुची को प्रकार विरोधात्मक इच्छा गुड़िक आसुची जो गुड़ी सब कार्य करिया पई प्रवर्त होचंती से सब लक्ष्य करिया पड़ो और देखिए उदाहरण स्वरूप नबा हमर मानसिक प्रकृति से कौन करे जहाँ भी घटना घटुची जहाँ भी परिस्थिति आसी पहुंचुची सबु बेले तार मन अनुजाई सी गोटे फेवरेबल एक्सप्लेनेशन दिए ताकू सुहेला वाला कथा गुड़िक कहे
तो एटी कौन असुविधाटी हुए आम यथार्थ सत्य टू दूरे जाऊ तो बर्तमान ये परिस्थिति करिया कौन पड़िबो माँ कहउचंदी देयर आर टू वेज फॉर प्यूरिफिकेशन गोटे होउची फ्रॉम आउटर टू इनर आ गोटे इनर टू आउटर तो से इनर टू आउटर अर्थात भितर बाहर आड़ को विशुद्धिकरण प्रक्रिया क्यों भाया हम ना कहउचंदी तमे निज भितर गोटे उच्चतर आदर्श को खोज तमे जो आदर्श को नहीं महत्तर आदर्श नहीं बंचुच से सत्ता टू नहीं खोज भितर भितर प्रवेश कर खोज तम भीतर एमती जन किए अच्छी जी कि गोटे महत्तर जीवन चाहे महत्तर आदर्श को से अनुसरण करने को चाहिए और स्वीकृति मध्य देछि जेपर्यंत तुम तुम चैत्य सत्ता को आविष्कार करना से सत्ताटी हूँ तुम भीतर थिबा महत्तर सत्ता बा केंद्रीय सत्ता बोली तुम कहि परिबो बा उच्चतर सत्ता बोली कहि परिबो आ तमर जो ये मानसिक प्रकृति प्राणिक प्रकृति शारीरिक प्रकृति भीतर जो दुर्बलता गुड़िक अच्छी बा जेकोसी आवेग प्रवेग इच्छा जहाँ भी उच्चतर हो पारे निम्नतर हो पारे से जिनस गुड़ आसूची तमें से उच्चतर आदर्श पाखे नहीं रख ताकू देखई दियो से उच्चतर आदर्श को देखई दियो ये जिनस गुड़ मो भीतर अच्छी से आम गोटे आंतरिक इच्छा थी दरकार जे आमे ताकू ही विचार करिया को छाड़ी देबू से उच्चतर आदर्श को विचार करिया को छाड़ी देबू जिते से उच्चतर आदर्श दृष्टिकोण आम देखा यथार्थ आम अग्रगति करिया चाहूथिबा चले जहाँ भी आम अस्तित्वर आम सत्तार सत्य को विरोध करुची ताको आम प्रत्याख्यान करिया तेणु एही भली भाबे गोटे चैत्य केंद्र चारिपटे आमर अन्य सत्ता गुड़िक ऑर्गेनाइज होगा को लगे माँ कहते यार विभिन्न प्रकार प्रोसेस अच्छी आम गोटे गोटे करी जिबा अर्थात आम टिके भांगी दवा शारीरिक चेतना प्राणिक चेतना मानसिक चेतना ये सबू जहाँ मध्य विकृति आ अज्ञानता भरपूर होगी अच्छी केमी धीरे धीरे ताको आम अतिक्रम करवा ताको परिशुद्ध करवा ताको और व्यापक करवा से संबंध में माँ अनेक जार वर्णना करछंती ताको आधार करी आम आलोचना करवा तो प्रथम होची शरीर चेतनार व्यापकता आम देखिबा ए शरीर टी को माँ तैयारी करछंती हेले सेथिरे भगवान को गुण नहीं ताहले एथिरे प्रकृति भगवान निवसित करुछंती ना नहीं भगवान प्रकृति वास करुछंती ना नहीं हम ईशा उपनिषद रे गोटे वाक्य अच्छी से वाक्यटी ये आरंभ होची जे ईशवास्यम इदम सर्वम अर्थात भगवान प्रतिटी हृदय मध्य से वास करुछंती तो महात्मा गांधी गोटे चमत्कार वाक्यटी अच्छी से कहउचंती ए दुनिया रू सबु उपनिषद और सबु शास्त्र हठात पाउंस रे परिणत हो जाए जली जाए तथापि भी जदि ईशोपनिषद प्रथम वाक्यटी प्रथम श्लोकटी ईशवास्यम इदम सर्वम जदि एटा हिंदू मानकर सनातन धर्मर लोक मानकर स्मृति रे बंची रहे ताहले एई हिंदुत्व सबु दिन पई बंची रहिबो एई गोटे मात्र वाक्य जे भगवान आम हृदय भितर वास करुचंती आम शरीर भितर वास करुचंती वास्तव देखिया गले भगवान निजे जड़ ही प्रकाश होइचंती हम जहाँ आलोचना करते शारीरिक अहंकार ही माँ हमको विच्छिन्न कर रखी दूरे कर रखी से जणे को दौ ना जे प्रकृति में भगवान आ भीतर वास कर तेणु शारीरिक चेतनार परिशुद्धिकरण अथवा व्यापकतार अर्थ या जे आमे धीरे धीरे सचेतन होगा लगिबा जे आ भितरे भगवान वास करुछंती भगवान गुण आ भितर प्रकाशित होवार संभावना अच्छी आउ ता भितर भगवान सामर्थ्य मध्य अच्छी तो कोठो आम आरंभ करवा माँ कहते तमे प्रथमे तुम शरीर सामर्थ्य संबंध सचेतन हुआ ताकू सेतिकी समर्थ करी गढ़ी तोड़ तो तापाई तुमको से शारीरिक चेतनाटा को आहरी विस्तृत करिया पड़िबो हमको पिला दिनु आश्रम में जो जो जिनस गुड़िक शिखा जाए जमती अनेक शारीरिक कौशल व्यायाम शारीरिक क्रीड़ा स्पोर्ट्स आदि ए सबु किछि प्रकृति रे हमको सेही सामर्थ्य संबंध रे सचेतन करे दा पई अर्थात हम शरीर को सेती समर्थ करिया पई और ता सामर्थ्य को संबंध रे हमको मन पकई दा पई जे शरीर
ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ଯାହା ଏଯାବତ କରିଛି ସେତିକି କିଛି ବି ନୁହଁ। ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମର୍ଥ ହବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚେତନାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ, ବିସ୍ତୃତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଲୋକିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲିବା। ସେଇ ମେସେଜଟି ହଉଛି you will become more and more perfect in your work as the consciousness grows, increases, widens and is enlightened. ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଶରୀର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ସେ ହେଇପାରିବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ହେଇପାରିବ। ଶରୀର ଆମକୁ ଶାସନ କେବେ କରିବନି, ସିଏ କଥା ଗୁଡିକୁ ମାନିବ। କାହାର କଥା ମାନିବ? ସେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାଟିର କଥା ସେ ମାନିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କିଏ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି? ସେଟା ହଉଛି ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ସିଏ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡିକୁ ମାନି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଶରୀର ଯୋଉ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନମନୀୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଡ ହେଇକି ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ, ତାର ନିୟମ ଗୁଡିକ ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ, ଯାହାକି ସିଏ ଶରୀର ଉପରେ ଆରୋପ କରେ। ସେମିତି ଦେଖିବା ପ୍ରାଣ ପାଖରେ, ପ୍ରାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମନା ବାସନାରେ ଭରି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଶରୀରକୁ ସେଇ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରି ଶକ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଅଯଥାରେ ଅବକ୍ଷୟ କରେ। ଆଉ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ସମଞ୍ଜସ୍ୟତାକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀର ଭିତରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ, ଶରୀର ଭିତରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶରୀର ଜଲ୍ଦି ଅବସନ୍ନ ହେଇ ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଶରୀର ପାଖରେ କଣ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଫ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ। ଶରୀର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ସେ ଚଳିପାରିବ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ସହନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଦେଖୁଥିବା କୀର୍ତ୍ତଦାସ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ। ସେମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା, ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି କଥା ସିଏ ମାନି ଅସହ୍ୟ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ସେ କରନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରିପାରେ? ଏତେ ଅସହ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜଣ କିପରି କରିପାରେ? କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶରୀର ସେତିକି ସମର୍ଥ ବୋଲି ସିନା କରିପାରୁଛି। ତ ସେଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପ୍ରକୃତିରେ ତମ ଶରୀର ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ହବ। ସେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ନୁହେଁ, ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତଦାସ ହବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତମ ଶରୀରକୁ ସେତିକି ସମର୍ଥ କରି ଗଢି ତୋଳିବେ, ଯାହା ଆହୁରି ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ସମର୍ଥ ହବ। ଅନନ୍ତ ଗୁଣର ଶକ୍ତି ସହିତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବ। ଏବେ ଶରୀର ସେଇ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାରାଥନ ଦୌଡାଳି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି ଯେ ଆମେ 50 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାରାଥନ ଦୌଡାଳି ସିଏ ଅତି ସହଜରେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରେ। କଣ ପାଇଁ? ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡି ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ, ଯେମିତିକି ହିମାଳୟ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସେଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଲୋକ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ପାଖରେ ହାତ ପାନ୍ତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଆମକୁ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାହାଡି ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ପଡେ, ପୁଣି ସେ ପାହାଡର ଉଠାଣି ଗଡାଣି ଭିତରେ ଦେଇକି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ହାର ଅନେକ ଅଧିକ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସେତିକି ସମର୍ଥ ବୋଲି ସିନା ସେ ଜିନିଷଟି କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ଭାବୁଛେ ଶରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ କଥା। ଶରୀର ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କରିପାରିବ। ତ ଶରୀରକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଆମ ସତ୍ତାର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ୟ, ତାହା ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ଶାସିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଶାସିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବୁ ଯେ ଶରୀର କଣ କରିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ କୋଉ ଜିନିଷରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସେଇ ଶାରୀରିକ ଚେତନାଟିକୁ, ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାଟିକୁ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭିତରେ ସେତିକି ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରକୃତିରେ ନୀରବ ରୁହ, ସେତେବେଳେ ତମେ ସେଇ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି ବା ସେ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ସହିତ ତମେ ଯୋଡି ହେଇଯାଅ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଜାଗତିକ ଶକ୍ତିରେ ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି, ଯୋଉଟା ତମ ଶରୀରକୁ ତମର ଯଥାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟଟି ଯୋଗାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ତମେ ସେଇ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଯାଇ ପାରିଲ, ତମେ ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ରାମଟି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରିବ।
ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂତନ ସଂଗତି ସେଟା ଆମ ଶରୀରରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବ। ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସଂଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, କହିବା ଗୋଟେ ରୂପଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ମା ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି ଅନଫୋଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରୋଇଂ ପରଫେକ୍ସନ, ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉନ୍ମିଳନ ଆମ ଭିତରେ ଘଟିବ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ନଉଛି, ମା ଯୋଉ ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ ଓମେନ୍ ହୁ ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ୱାକ୍, ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏକି ଜାଣନ୍ତି କିପରି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛରେ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ କେତେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ମଣିଷ, ଜଣେ ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଚାଲିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିବାର ବି ଗୋଟେ କଳା ଅଛି, ଚାଲିବାର ଗୋଟେ କୌଶଳ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ଆମ ହସ, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମ ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଆମର ପୋଶ୍ଚର ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ କୋଉ ଜିନିଷଟି ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ରୂପାନ୍ତରର ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିବ। ଚାଲିବା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଆମ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅବକ୍ଷୟ, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଆଉ ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡିକ, ଶରୀରର ଚେତନା ଗୁଡିକ ସିଏ ଆଉ ଅବକ୍ଷୟିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ନିୟମ, ତାର ବି କୌଣସି କାରଣ ରହିବ ନାହିଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁର ନିୟମ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଶାରୀରିକ ଚେତନାଟିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ବା ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାର ବ୍ୟାପକତା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆମ ପ୍ରାଣ କୋଉ ଭଳିଆ, ଥରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବସିଥାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ କହିଲା ଯେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନାହିଁ, ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବି ଆଉ ମୁଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବି। କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିରାକାର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ କାହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବି, ମୋର ଧ୍ୟାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୋର ଏକାଗ୍ରତା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମତେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରୂପ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ କଳ୍ପନାରେ ଆଣି ତା ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ବେଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଶାଳଗ୍ରାମ, ତ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ହିଁ ତମେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହୁଅ, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କର। ଶିଷ୍ୟଟି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତାଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ସେତେବେଳେ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପକୁ ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଆଣି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଶିଷ୍ୟଟି ଯୋଉଠି ବସିଥିଲା ସେଇଠି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟର ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ତାକୁ କହିକି ଯାଇଥିଲି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ, ଧ୍ୟାନରେ ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ ଲାଳ କାହିଁ ଗଡି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଇ ବାବୁ ଉଠ ଉଠ, କଣ ତମେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡିଲାଣି। ସେଠୁ ସେ ଉଠି ପଡିଛି କାନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଗୁରୁଦେବ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଉପରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ, ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ, ମତେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପଟି ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ଭଳିଆ। ଆଉ ସେ କଙ୍କଡା କଥାରୁ ମନେ ପଡିଲା ମୋର ମାଉସୀ ଭଲ କଙ୍କଡା ଝୋଳ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଙ୍କଡା ଝୋଳ କଥା ମନେ ପଡି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ। ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା କରୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପକୁ ଆମ ଯୋଉ ଚେତନା ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି ତାକୁ ସେ କଙ୍କଡା ଝୋଳରେ ପରିଣତ କରିଦଉଛି। ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଲୋଭ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବାସନା, ଏସବୁ ପ୍ରାଣର ଗୁଣ। ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ, ପ୍ରାଣ କାହାର ଆବାସସ୍ଥଳୀ? ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଅନେକ ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ କାମନାର ହିଁ ଆବାସସ୍ଥଳୀ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ହିଂସାତ୍ମକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ସମାନ ସମୟରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ତା ଭିତରେ ହତାଶା ନୈରାଶ୍ୟ ଆସିପାରେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ସମାନ ସମୟରେ ତା ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆସିପାରେ, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ତୀବ୍ର ବାସନା ଆସିପାରେ।
किंतु प्राण सबु किछि से गतिशील कराए, सबु किछि भितरे से गोटे जीवन भरी दिए, अपर पक्षरे सबु किछि ध्वंस मध्य कर दे पारे। तो ए सबु गोलमालिया गंडगोलिया परिस्थिति देखिले आमको माँ कहउचंदी जे प्राण को श्रृंखलित करिया पई, प्रशिक्षित करिया पई सब सबुठु कष्ट। किंतु यदि प्राण सहयोग न करे, प्राण सहायता न दिए, ताहले कौनसी उपलब्धि मध्य संभव हेबा नै। माँ कहउचंदी हमर प्राण से गोटे चमत्कार जंत्र, चमत्कार कर्मी, किंतु वर्तमान से कौन करुची ना से निजर ही संतुष्टि खोजुची, निजको सैटिस्फाई करने चेष्टा करुची। एथरा आमे ताकू से सैटिस्फैक्शन रो अटकाउचे, तार आवश्यकता को परिपूर्ति हबारे आमे ताकू अटकाउचे, से स्ट्राइक रे बस जाउचे। स्ट्राइक रे बसी गला पर कोन करूची, ता भीतर सब किछि शक्ति उभे जाउची, से क्लांत हो जाउची, अवसन्न हो जाउची, निरुत्साहित हो जाउची, विद्रोह करियो लागुची, हताशा रे डूबी जाउची। एथि पई ता द्वारा आमे किछि यथार्थ कार्यटी करै पर नै। माकु जंति परिस्थिति एइ बेला तमे एते बेले किछि महत्तर कार्य करिया को जाउछ आ प्राणर वासना गुडी परिपूर्ण करून, त प्राण एइ भଳି ही कार्य गुडी करौछि। तमे तले एइ परिस्थिति रे कोन करिवो? मां कहउचंती तमे एइ स्तर रे कोन करिवो ना शांत रुह, आ कोनसी प्रकार प्राणर प्रभाव रे कार्य करियारो निवृत्त रुह। एटा को भଳି संभव? गोटे उदाहरण दउछि। थारे गुरु शिष्य बसथांती, शिष्य जनक गुरुଙ୍କ प्रभाव रे आसी निज भीतर अनेक किछि परिवर्तन करिया लागि थांती, किंतु देखिले जे तांको भीतर जेतर से कामना वासना गोटे जागृत होउछि, ताकू तार प्रेरणा रे आसी से अनेक गुडे खराब कार्य मध्ये करि बसचंती। जे तांकर से नियंत्रणटा आसुनी, से भाबुचंती कामना मो भीतर आसिले माने त भूल कार्य करबी ही, ए भीतर तो निवृत्त करिया संभव नुह। मो भीतर जे पर्यंत वासना अछि मु से पर्यंत तो भूल कार्य करि बसिबी, कारण मो निज ऊपर मोर नियंत्रण नहीं। तो सी पचारुचंती गुरुदेव एथु किपरि मुक्ति संभव? गुरुदेव कहउचंती जे तमे जो कहूच नियंत्रण संभव नुहे, तुमको मोटे कार्य करिया कहूची, तमे करिवो कि? कहले हां गुरुदेव आपण जहा कहियो केमति करिवेनी। जे कहले गोटे मद बोतल किणी खाण, तो से आश्चर्य ये गुरुदेव कहउचंती मद बोतल किणिया को, जा हो गुरुदेव आदेश देइचंती माने तांको तो पालन करिया पड़िवो। तो सेटा मद बोतल किणी के आनले। किणले गुरुदेव कहिले से ठिपी खोली की गोटिए ढोक पाटरे पूरा पीबनी, खाली पाटरे खाली पूरा। आश्चर्य, गुरुदेव कहउचंती मते मद पिया को कोन हेछि आजी? गुरुदेव कथा मानिया को तो पड़िवो। तने से ठिपी खोली की ढोके पाटरे पुरेले, गुरुदेव आदेश तक पीबेनी। सेटू गुरुदेव तम कहिले त कुळु कुळु करी ताकू बाहर को पके दियो। सी तांको गुरु कथा मानले, कुळु कुळु करी बाहर को पके देले। सेटू गुरुदेव तम पचारुचंती तुमको निशा हला कि? सेटू शिष्य कहले मु तो पीनी, मते काई निशा हबो? गुरुदेव कहले एठी होची कथा, जणक भितर से प्रकार वासना आसिला ठीक, किंतु से वासना प्रभाव रे आसी कि यदि कार्यटी न कला, सेठी ही ताकू से परित्याग कला, से वासना द्वारा से आक्रांत हबो केमिति? तो आम भितर से डिजायर्स गुड आसुची, वासना गुड आसुची, हेले सेही समय रे आमको आमे जदी टिके दूर रे ताकू लक्ष्य करूचे और नीरव रही पारुचे, आउ ताकू कार्य करियारो तो निवृत्त करे दी पारुचे, ताहले सी तार जो नकारात्मक दिगटी को कार्य रे परिणत होग दबो नै। हम धीरे धीरे कौन करिया पड़िवो, आम भितर थिबा सेही उच्चतम केंद्र चैत्य सत्ताटी सहित गोटे सचेतन संपर्क धीरे धीरे प्रतिष्ठा करिया को पड़िवो। सेही चेतनार प्रभाव रे आमे ए कार्यटी को अधिक व्यापक भाव रे, अधिक स्पष्ट भाव रे, अधिक सुगठित भाव रे आमे करि परिबा। हमको एथिपई दरकार असीम धैर्य और अध्यवसाय, जा फल आमे धीरे धीरे सेही स्थिति को उत्तीर्ण हबा। आम भितर गोटे शुभेच्छा जागृत करिया पड़िवो जे ए कार्यटी यथार्थ में करिया को चाहे। हमको अत्यंत साहसी होगा पड़िवो, आउ एतिकी भरोसा रखिया को पड़िवो जे विजय दिने सुनिश्चित। सेठु हम देखिबा जे ए जे प्राणर क्षेत्रटी आम भितर दिने दिने अत्यंत महत्तर अनुभव सब आसे।
पुणी आउ थे देखा जे केते केते खराब कथा गुड़िक खराब मंद प्रवृत्ति गुड़िक आम भितर जागृत हुए, अत्यंत शुष्क लगे, गोटे विद्रोहात्मक मनोभाव गुड़िक भी जागृत हुए। तो से प्राण भितर से महत्तर अनुभव आसार क्षमता अच्छी, ता भितर से शक्ति जागृत होवार क्षमता अच्छी। सी आम भितर थी उच्चतर कथा गुड़ी को अत्यंत विनम्र भाव में बुझियार ता भितर सामर्थ्य आसी। तेणु देखिए विरोधात्मक कथा गुड़िक सब आम भितर घूरी बुलूं। से जो नकारात्मक कथा गुड़ को आम चिन्हवा जे एटा मो भितर छाई, से आलोक नुहे, से छाई दिग गुड़ी को मत मो भितर को काढ़ी फोपाड़ द्वार अच्छे। माँ कहते तुम ए को प्रकार प्रयास टी कर विशुद्धीकरण प्रक्रिया भितर कहते तुम टिके दूर छिड़ा हुआ, दूर छिड़ा ही ता सहित जमा इनवल्व हुअनी। जो जो नकारात्मक स्पंदन गुड़िक नकारात्मक वासना गुड़िक तुम भीतर आसुचंती, तुम यदि प्रकृति में आंतरिक भाव इच्छा करो अतिक्रम करने को टिके दूर छिड़ा हुआ, ता उपरे सही उच्चतम आदर्शर दृष्टिकोण रु से माँ आलोक टी पकाओ, ताकू देखाओ चिन्ह जे एई प्रकृति को जिनस भितर अच्छी, को प्रकार स्पंदन ता भितर अच्छी, क्वेश्चन धरी ताकू फोपाड़ी दियो। तो बारंबार निज कुह जे मुझे चाहे नहीं, मो जीवनर एई प्रकार गतिविधि सहित किसी संपर्क नहीं, एई स्पंदन टी मो भितर तार किसी अस्तित्व भी नहीं, एटा मो प्रकृति संपूर्ण विरोधी। तेणु मु एई जिनसटी को मो भितर काढ़ी फोपाड़ी देवी, आठू मु विच्छिन्न हो जिवि। तेणु एई प्रकार गोटे स्पष्ट तुम भितर इच्छा जागृत होवा दरकार, गोटे आंतरिक इच्छा जागृत होवा दरकार, जहा फल तुम एई विरोधात्मक जिनस गुड़ लक्ष्य कर पारिबो, अतिक्रम करिवारे गोटे सहायता दे पारिबो। तो से माँ कहउचंती जे आमे तार नेक्स्ट पर्याय को जिबा, जे प्राण भितरे को भले भाबे से विकृति आसिकी प्रवेश करिछि। आमे देखिबा जे दिव्य प्रेम जेते बेले अभिव्यक्त होगाकू से चाहितिला, देखिए दिव्य प्रेम होची इट इज द क्वालिटी ऑफ द साइकिक, एटा गोटे चैत्यर गुण। तो दिव्य प्रेम जेते बेले प्रकाशित हो चेष्टा कला, तेणु सी गोटे आधार खोजिला, तेणु से प्राण भितर दे अभिव्यक्त होगाकू चाहिला। आमे देखिबा जे गोटे माठिया रे आगुरु ही माटी थाए, आमे जेते पानी ढाळू से पानीटा गोलिया हो जिवो। तेणु से भले ही जेहेतु आम आधार विकृत थिला, अज्ञ थिला, से दिव्य प्रेम जेतेला से प्रकाशित होगाकू चाहिला, से प्राण ताकू विकृत करदेला। ताकू कोथरे परिणत करदेला ना डिजायर्स, एक्सपेक्टेशन, जेलसी, एई सब जिनस रे दिव्य प्रेम परिणत हो गला। ता भीतर कामना देखा देला, अनेक आशा देखा देला, अनेक ईर्षान्युत भाव देखा देला। तेणु ए प्राण भितर से शुद्ध प्रेमटा को फुटेबा ही हम कहि परिया गोटे प्राणिक व्यापकता बा भाइटल वाइडनिंग। त मां केतरा स्टेप्स सब कहउचंदी जे तमे से प्रेमटा को से शुद्ध प्रेमटा को फुटेबारे प्रारंभिक स्तर रे को प्रयास टी करि परियो। देखो जी मु भाबुची मत जणे जे स्नेह दउची, मते सम्मान दउची, मते भल पाए दउची, यदि मु भाबुची सी मते दउची, एठी मो प्राणटी संकुचित हो जाउची, मो प्राणटी स्क्वीज हो जाउची। कि समान समय रे मु जदि अनुभव करिबी जे जहाँ भी इमोशन, जहाँ भी सेंटिमेंट, जहाँ भी स्नेह, सम्मान, श्रद्धा, भल पाए आसुची, सेटा मां को ठारो ही आसुची, अन्य व्यक्ति टे तार माध्यम से मां को भल पाइबा ता भितर दे मो पाखु आसुची। जेतर एई अनुभवटी मो भितर आसीबो, तेतेबेले से व्यक्ति सहित मु आसक्त हेबी नहीं, ता सहित जड़ित हेबी नहीं। यदि एई जिंसटी मोर प्राण को आहुरी विस्तृत करियो, व्यापक करियो। से मां को इमोशन प्रकृति केते भास्ट थिला तार गोटे उदाहरण। थरे नलिंदा बसिक मां को सहित कथा होतिले, कोन से गुरुत्वपूर्ण विषय कथा होतिले। से समय देखुचंदी से छात ऊपर दे गोटे झिटिपिटी जाउची, हठात से मां को कोଳରେ गଳି पड़ला। जेते मां को कोଳରେ गଳି पड़ला, नलिंदा देखुचंदी मां से झिटिपिटा को उठेले, उठेकी ताको आउसिया को लागिले। नलिंदा सेही मुहूर्त अनुभव करूचंदी जे एबे नलिनीकांत गुप्त और झिटिपिटी भितर किसी फरक नहीं, किसी भी डिफरेंस नहीं। अर्थात मां नलिनी को जति भल पाती, से झिटिपिटी को सेति भल पाती। तो मांकर से प्रेम केते परिशुद्ध थिला और केते समस्त प्रति केमी से भीतर ही जाउतला समान भाव रे। तो मां तो दिव्य जननी थिले, सेटा भिन्न कथा, किंतु आम मध्य आमे एई शुद्ध प्रेमटा को विकसित करिया को चाहिबा,
समस्त प्रति से प्रेम समान भाव में विच्छुरित होथिबो आ अनुभव होथिबो मां को प्रेम ही आम भीतर देकी अभिव्यक्त होउची अन्य मान प्रति मां को प्रेम अन्य मान भीतर दे मो प्रति मध्य अभिव्यक्त होउची तेणु सबुळे मीडियम हेबे डिवाइन भीतर मां को नै कि से अनुभवटे आसीबो ता भीतर आ विकृति रहिबोनी तेणु एटा गोटी प्रकार कथा द्वितीय कथा आमे आ निज पसंद अपसंद निज मतलब पई कार्य करिवा नहीं सत्य को दृष्टि रखी कार्य करिवा कोनोसी कामना न रखी कार्य करिवा निज प्रच्छन्न वासना द्वारा नियंत्रित होई कार्य करिवा नहीं जोटा केवल परम सत्ता उठर आसुची ताकू स्वीकार करिवा जेतेबेले एई अभ्यास टी हमर अभ्यास रे परिणत हबो सेतेबेले देखिबा धीरे धीरे प्राण परिशुद्ध होकु लागुची प्राण अन्य गोटे शक्ति द्वारा परिचालित होकु लागुची तो धीरे धीरे एई प्राणिक चेतना रे गोटे व्यापकता आसीबाकू आरंभ करिवो तो एई व्यापकता रे हमकु धीरे धीरे से प्यूरिफिकेशन बा विशुद्धीकरण आड़कू नै जिवो तो ए मध्य रे तृतीय पर्याय आसी जो मानसिक चेतना व्यापकता से जिनसटी आमे हमर आसंता डिस्कशन रे सेटा को विस्तृत आलोचना करिवा कारण मानसिक चेतना रे जो संकीर्णता भरी रहिची तार ताकू आलोचना गोटी गोटी कर ताकू चिन्हिले आलोचना कले से अत्यंत गभीर को जाई हबो तेनु एबे आमे आ किछि समय आलोचना करिकि हमर आजिर डिस्कशन टी को एठी कंक्लूड करिवा आमे देखिले जे से विशुद्धीकरण पई जो जिनसटी हम भीतर आवश्यक सेटा हो जोटा प्रसारता प्रथमे हमकु विस्तृत होक पड़ियो विस्तृत न हेले से परिशुद्ध परिशुद्धीकरण बा विशुद्धीकरण प्रक्रियाटी आरंभ हो परियो नै तो मां कहउचंती गोटे समर्पण भितर ही रही जोटा असल प्रसारता आमे जत्ते बेले हमर एई प्रकृति को बा प्रकृतिर जो जंत्र सब मन प्राण शरीर को ताको प्रस्तुत करिया जाउछे सेते बेले ताको विशाल करिया जाउछे तले आमे जी प्रकृतिर विशाल तांका पाखु हम समर्पण करिया पड़ियो गोटे बिंदु जते बेले सी समुद्र रे पड़े गोटे विशालता मध्य से लीन हे सेते यथार्थ से बिंदुटा समुद्र रे परिणत होय तो हमकु मध्य से बळी विशाल चेतना पाखे निजको समर्पण करिया पड़ियो आ से विशाल चेतना सहित आमे मिसी गले प्रकृति आमे दुर्बल नुह आमे अनंत गुण शक्तिशाली हो उठे मां कहउचंती भगवान को समर्पण करे अर्थ कोन टू सरेंडर टू द डिवाइन इज टू रिनाउंस योर नैरो लिमिट्स एंड लेट योरसेल्फ बी इन्वेडेड बाय इट एंड मेड ए सेंटर फॉर इट्स प्ले भगवान को समर्पण करे अर्थ हमर जो सब संकीर्ण सीमा रेखा गुडी को अछि ताकू परित्याग करबा आउ से भगवान को से मां को से दिव्य शक्ति को अनुमति देबा सी हमको अधिकृत करिवे आ तांकर लीला क्षेत्र रो केंद्र करिवे तो सी ही आम भीतर दे तांको इच्छाटी को प्रकटित करिवे सेते बेले मु अत्यंत गोटे विश्वात्मक चेतना रे बंचियो आरंभ करिवि गोटे विश्वात्मक चेतना रे बसवास करिया आरंभ करिवि मासी कथा उडी कहउचंती ध्यान प्रार्थना रे गोटे चेतना रो विस्तार रो आलक्ष्य जे तू होई गलु मु आ मु होई गलु तू अर्थात तो मो भीतर आ किछि फरक नहीं मु से विशालता रे परिणत हे गेली तू भी निजको मो भीतर दे यथार्थ भावे अभिव्यक्त कलु से कथा आउ सुंदर वर्णना करछिन गोटे स्थान रे ऑल ही लव्स ऑल ही मूव्स ऑल आर हिज ऑल आर ही सावित्री रो वाक्य सब किछि तांकरी प्रेम रे ही परिचालित होउची सब किछि को से गतिशील करछंती सब किछि तांकर सब किछि सी ही तो एई सहित आमे गोटे प्रयास सचेतन प्रयास आरंभ करिवा आमे धीरे धीरे से संकीर्णता को छाड़ी विस्तारित हवा मांकर जो स्वप्न देखिथिले तांक पिला दिने धीरे धीरे से ऊपर को विस्तारित हेकि चलचंती मां कहउचंती वाइडन योरसेल्फ टू द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ द यूनिवर्स एंड बियॉन्ड तुमको प्रसारित कर निजको आहुरी व्यापक करतोळ से विश्व ब्रह्मांडर जो परिसीमा अछि से पर्यंत ताटू अधिक मध्य एंड बियॉन्ड कोन मां कहउचंती तम भीतर सेही सबु जासु संकीर्णता अछि स्वार्थपरता अछि सेही सीमितता अछि ताकू तमे झाड़ी दियो sake of all narrowness selfishness limitations and wake up to the consciousness of human unity से मनुष्य को जो जिनसटी एकतार सूत्र बांधी रखिबो सेही चेतना को तमे उठी चला कहउचंती एई गोटी मात्र उपाय जहा फल रे ए पृथ्वी रे प्रशांति प्रतिष्ठा हे पारे ए पृथ्वी रे संगति आसी पारे दिस इज द ओनली वे टू अचीव पीस एंड हार्मनी तो हमकु उड़ी जाय पड़िबो
विस्तृत हवार अर्थ व्यापक हवार अर्थ जे आम से बंधन गुड़ी को काटिकी उड़ी जावा माँ कहते सोर एवर हायर एवर फार्दर विदाउट फियर और हेजिटेशन कौन सी द्वंद्व न रखी कौन सी शंका न रखी कौन सी भय न रखी तमें से उच्चतर जगत प्रति आस्पिराशील हुआ से आड़ को ही उड़ी चल कारण आज तुम जहाँ आशा कर जहाँ कर भगवान जो अवदान देवार तमें आशा करा ही आसंता काली उपलब्धि डे कम्स when all barriers have fallen within and around us एमिति गोटे दिन आसीबो जे सब प्रतिबंधक गुड़ झड़ी पड़े आम भितर हो बाहर हो and we can feel like the bird that opens its wings for an unopposed soar आम सेमती गोटे चढ़ई भली अनुभव करिया सेमती गोटे पक्षी भली अनुभव करिया जे ता डेणा मेली गोटे अप्रतिरोध्य उड़ान पई से प्रस्तुत हबो एटा ही गोटे व्यापकता आड़ू आम यात्रा माँ प्रभु आरंभ से कहते से जो वाइडेनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम आम जो यथार्थ विस्तृत हो उठा सेटा ही आमर मुक्ति पाई गोटे पाहाच कहते वाइडेनिंग लीड्स टुवर्ड्स फ्रीडम एंड फ्रीडम लीड्स टुवर्ड्स शुद्धि जिते आम मुक्त हो उठा सेते आम परिशुद्ध हो उठा से आसब आमर यथार्थ विशुद्धिकरण यथार्थ परिशुद्धि तेज आज आम ये शारीरिक चेतना और प्राणिक चेतनार व्यापकता और विशुद्धिकरण संबंध में आलोचना कले तो आसंता आलोचन आम से मानसिक चेतनार व्यापकता और विशुद्धिकरण संबंध में विस्तृत भाव में आलोचना करवा तेणु आज जो आलोचनाटी ये माँ चरण में अर्पण करुछि अशेष कृतज्ञता माँ को और प्रभु को वंदे मातरम माँ बर्तमान समय हो जाए आम माँ को आम माँ नाम जप सहित कार्यक्रम को विरति घोषणा करवा माँ 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 आज कार्यक्रम उपस्थित थी समस्त भाई बापा मान को पुणी वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई प्रभु माँ को अनंत कोटि प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आज आम कार्यक्रम को विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त को